सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशंस। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। The age of social change. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolutions. The French Revolutions opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read before, the 18th century society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this in many parts of the world, including Europe and Asia. New ideas began New ideas about individual rights and who control social power began to be discussed in India. Raja Ram Mohan Roy and Desrosiers talked of the significance of French Revolution and many other debated the ideas of post-revolutionary Europe. The development in the colonies in turn reshaped these ideas of societal change. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to whose wanted to restructure society radically. Some were conservatives, others were liberals or radicals. What did these terms really mean in the context of the time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced change. Then we will focus on the one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society through the revolution in Russia. This socialism uh, became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज के आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारी के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े।
आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पूर्ण गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स थे, कुछ उदारवादी लेबरर्स या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था? राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थीं जो समान थीं? यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। Liberals, radicals, and conservatives. One of the group which looked to change society were the liberals. Liberals wanted a nation which tolerated all religions. We should remember that at this time European states usually discrimination in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the rights of individuals against governments. They argued for a representatives elected parliamentary government subject to law interpreted by well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. However, they were not democrats. They did not believe in universal adult franchise, that is right of every citizen to vote. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. In contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. Many supported women's of women's suffragette movements. Unlike liberals, they opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few. Conserva- conser- conservatives
conservatives were opposed to radicals and radicals after the French Revolution. However, even conservatives had opened their minds to the need for change. Earlier in this 18th century, conservatives had been generally opposed to the ideas of change. By 19th century, they accepted that some change was in, in inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century help define both the limits and potential of this political tendencies. उदारवादी रेडिकल और रूढ़वादी समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करते थे। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारियों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकार को हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुनिश्चित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी डेमोक्रेटिक नहीं था। यह लोग पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। यह लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उसका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह को के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत यह लोग बड़े जिम्मेदारी और संलग्न संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह की विशेषाधिकार के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे।
रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पहले समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं, परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। 19वीं सदी के क्रांति और राष्ट्रीयकरण की विभिन्न कोशिकाओं ने इन सभी राजनीतिक धाराओं को अभिष्ट दिया।